ہم اس کے بعد گزارش کرتے ہیں گرامی قدر حضرت مولانا امین اللہ عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا متین اللہ قسامہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے درخواست ہے تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اظہار خیال فرمائیں۔ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے دوست اور بڑے بھائی مفتی جنید صاحب دامت برکاتہم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے اور پڑھنے کا خصوصی ذوق اور شوق عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی مفتی صاحب نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اجرا کی تقریب منعقد ہوئی جس میں میں نہیں آ سکا۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کی ضرورت اس کتاب کی حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ تو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو خود مفتی جنید صاحب کے حوالے سے کہ آج کے دور میں جب لکھنے پڑھنے کا ذوق بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور عام مسلمانوں سے کیا شکوہ کرنا، ہم جیسے لوگ جو کچھ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر سے بھی پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا ذوق بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر آج کے دور میں انٹرنیٹ نے، گوگل نے اور آگے چل کر اے آئی نے ان کتابوں کی جگہ لینا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ کتابوں کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن ہمیں کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں اور اس کا حل نکل آتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ نے کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ظاہری طور پر اچھے خاصے پڑھے لکھے نظر آنے والے لوگ بھی ہم جیسے، ان کا علم بہت سطحی ہوتا ہے، اوپر کا ہوتا ہے۔ نظر آتا ہے کہ بہت معلومات ہے، بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، لیکن اگر کسی موضوع پر ان سے بات کی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو اس کی معلومات نہیں۔ ایسے دور میں مفتی صاحب کا اس طرف قدم بڑھانا اور لکھنے پڑھنے میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، اپنی انرجی کو ان کاموں میں لگانا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور مفتی صاحب بہت مبارکباد کے مستحق۔ ہمارا ان سے ایک واسطہ پڑا تو ان کی صلاحیت کا اندازہ ہوا اور ان کی محنت کا اندازہ ہوا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کی حیات و خدمات پر کتاب آنی چاہیے اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ملک بھر میں جتنے اکابر اساتذہ والد صاحب کے اساتذہ، ساتھی، شاگرد، ان سب کو خطوط روانہ کر دیے گئے۔ پھر کچھ مصروفیات شروع میں اتنی زیادہ ایک ساتھ پڑ گئی کہ وہ 2-2.5 سال ٹھنڈے بستے میں وہ معاملہ چلا گیا۔ مفتی صاحب کو اس کی ذمہ داری دی گئی۔ مفتی اظہار مکرم صاحب ہمارے والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور ہمارے مدرسے کے استاد بھی ہیں، بہت خاص تعلق ہے، اور مفتی جنید صاحب، ان دونوں حضرات کو ذمہ داری دی گئی۔ تو یہ 2-2.5 سال میں جتنا کام پینڈنگ پڑا تھا، مفتی جنید صاحب نے 2-4 مہینے میں وہ کور کر دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ ہمارے کرنے کا کام باقی تھا اور وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا۔ مفتی صاحب کو جو کام دیا گیا تھا اور جس کے بارے میں لگ رہا تھا کہ اس میں 1 سال لگ جائیں گے، وہ کام انہوں نے 3-4 مہینے میں کمپلیٹ کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔
अभी रास्ते में आते हुए हमारे करम फरमा कारी मोहित चौधरी साहब, इनसे मैं ये कह रहा था कि अगर वो सारे काम भी मुफ्ती जुनैद साहब के हवाले कर दिए गए होते तो अब तक किताब आ गई होती। तो बहरहाल ये इस इलाके के लिए, इस इदारे के लिए, आप सबके लिए बहुत बड़ा सरमाया है। इनकी कदर कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए और हम सबको इनसे और इनकी तसनीफात से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आपको किताब पढ़ने पर जोर नहीं दूंगा कि आप किताब पढ़िए। मुझे एक बात आपसे अर्ज करनी है, आज के दौर में जो कयामत के करीब का दौर है, फितनों का दौर है, आजमाइशों का दौर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिंगोई फरमाई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब फितने बारिश की तरह बरसेंगे और ये सूरत हाल हो जाएगी कि एक शख्स दिन को मुसलमान होगा और रात में काफिर हो जाएगा, रात को मुसलमान होगा तो दिन में काफिर हो जाएगा। हम आज के हालात पर गौर करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने की तरफ इशारा फरमाया था वो हमारा ही जमाना है, आज ही का जमाना है। खुद मुसलमानों की अपनी जो दीनी सूरत हाल है वो हमारे सामने, हम सब अपना अपना जायजा ले लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं दीन के एतबार से। हम अपने घरों का जायजा ले लें, अपनी सोसाइटी का जायजा ले लें। इन हालात में जब हर आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है, हर आदमी कमाना चाहता है, अच्छा घर चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छी जिंदगी चाहता है, अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है, इन हालात में वो लोग जो दीन की खातिर, दीन की हिफाजत इशाअत के लिए, लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आज के हालात में यूं समझ लें कि सबसे बड़ा काम कर रहे हैं और अल्लाह के सबसे मुकर्रब बंदों में एक तो वो लोग हैं जो अपने काम काज से लगे हुए हैं, दुकान चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना एक उनका कारोबार है, एक काम है, मुलाजिमत है, लेकिन 2-4 महीने में 3 दिन के लिए निकल गए, 40 दिन के लिए निकल गए, कभी 4 महीने के लिए निकल गए, लेकिन मुस्तकिल उनका एक जरिए माश है कि अपना वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, दूसरा कोई काम कर रहे हैं। वो लोग भी अच्छे हैं, दीनदार हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछौना ही दीन को बना रखा है, जिनकी सुबह होती है तो मस्जिद की अजान से होती है और जिनकी रात होती है किताब का मुताला करते करते और लिखते लिखते होती है, जिनका दिन कुरान पढ़ने पढ़ाने, हदीस पढ़ने पढ़ाने और दीन पढ़ने पढ़ाने में गुजरता है, और जिनकी रातें मुताले में गुजरती है कि अगले दिन हमें क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है बच्चों को, जिन्हें हम उलमाए किराम कहते हैं, जो मदारिस के असातिज़ा हैं। ये वो लोग हैं जो आज के इस गए गुजरे दौर में मामूली तनख्वाहों, परेशानी उठाकर, दिक्कत उठाकर अपने बच्चों की शौक तो छोड़िए, जरूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुरान पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, दीन सीखने सिखाने में लगे हैं। आज के दौर में ये वो लोग हैं जो दीन को जिंदा किए हुए और जिनकी वजह से सारी दीनी रौनक नजर आ रही है, जिनकी वजह से मस्जिदें आबाद हैं, जिनकी वजह से मदरसे आबाद हैं, जिनकी वजह से दावत तबलीग का काम हो रहा है, दीन का जो कुछ हमारे पास मौजूद है वो उन्हीं की बरकत से। उनकी कद्र करने की जरूरत है, उनको पलकों पे बैठाने की जरूरत है, उनको इस दुनिया में अपना मुहसिन समझने की जरूरत है कि इनकी वजह से दीन जिंदा है, वरना हमारे पास इतना टाइम कहाँ। हमने तो दिन में अगर 5 मरतबा फर्ज नमाज पढ़ ली तो ऐसा लगता है कि अल्लाह मियां पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया,
ये वो लोग हैं जो अपना सब कुछ लगाकर दीन के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किए हुए हैं। इसलिए हमारे मुफ्ती जुनैद साहब वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उन्हीं में शामिल है। और ये जो भी काम हो रहा है, चाहे वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब हो, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना साहब हो, किताब लिखने वाले हो, बयान करने वाले हो, ये सब उसी काफिले के फर्द है। आज के दौर में ये कहा जाए कि अल्लाह के नजदीक रूए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा और मुकर्रब लोग अगर कोई है तो यही लोग। तो इसलिए इनकी कद्र कैसे की जाए, तो उसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल ये है कि उनके इल्म से फायदा उठाया जाए, उनकी इस खिदमत से फायदा उठाया जाए। अभी आज हम एक मजलिस में मौजूद हैं जहां मुफ्ती जुनैद साहब की एक मेहनत हमारे सामने आई है। हकीकी मानों में इसकी कद्र ये होगी कि हम इसको पढ़ें, इस किताब को ले हर फर्द मुफ्ती साहब से ये कहे कि भाई आपने न जाने कितनी रातें खपाई होंगी, अपनी नींद कुर्बान की होगी, कितनी दौड़ भाग की होगी, कितनी किताबों का आपने मुताला किया होगा, और इस मेहनत की वजह से कितनी जरूरियात आप पूरी नहीं कर पाए होंगे, घर वालों के कितने शौक और कितनी जरूरतें आपको मारनी पड़ी होंगी। आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया हमारे लिए, ताकि हमारे इलाके की जो सबसे बड़ी शख्सियत है हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, कि जिनके शागिर्दों में, जिनसे फैज हासिल करने वालों में बड़े बड़े औलिया अल्लाह का नाम आता है, उनकी जिंदगी से, उनकी नसीहतों से, उनकी बातों से हमें फायदा उठाने का मौका दिया इस किताब के जरिए। तो यहाँ मौजूद हर फर्द इस किताब को लेकर जाए और थोड़ा ही थोड़ा पढ़े, लेकिन पूरी किताब को पढ़े, और फिर पढ़ने के बाद मुफ्ती साहब को इत्तला करे कि आपकी किताब हमने पढ़ी है, और घर में इसका मुताला करे। जैसे घर में दीगर किताबों की पता नहीं तालीम होती कि नहीं होती है, जैसे दीगर किताबों की तालीम होती है, तो इस तरह की किताबों की भी तालीम होनी चाहिए। एक आदमी जो उर्दू पढ़ लेता है वो पढ़े, बाकी लोगों को पढ़कर सुनाए। ये है इल्म वालों की कद्र, ये है उनकी खिदमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा। खिदमत के बहुत सारे तरीके। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता फरमाई है इन उलमा की शक्ल में ये बाकी रहे, तो इनकी कद्र करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमत की कद्र करोगे, शुक्र अदा करोगे, तो अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफा करेंगे, और अगर तुम उन नेमतों की नाकदरी करोगे, नाशुक्री करोगे, तो फिर अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है, पकड़ वाला है, फिर अल्लाह ताला उन नेमतों को छीन लेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत उलमा की शक्ल में हमें अता फरमाई है, मुफ्ती जुनैद साहब की शक्ल में हमें अता फरमाई, और जिन लोगों ने भी बसे पर्दा इनका ताबून किया है, वो हाफिज फुरकान साहब हो, इनके इदारे के दीगर लोग हो, या मुफ्ती साहब के दीगर साथी हो, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें इनकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।